Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. Pythagoras theorem में I suppose we all are aware that hypotenuse square is equal to side 1 का square plus side 2 का square. ठीक है, but how is this theorem coming? And in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining sides. तो किसी भी right angle triangle में square of the hypotenuse is equal to the square of the sum of the remaining sides. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब hypotenuse होगा in triangle ABC. Let's say angle ABC आपका 90 डिग्री है. ठीक है, तो AC का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, ये आपको मालूम है भाई पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली प्रूव करने दिया जाए, हाउ विल यू प्रूव दिस? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. हाउ विल यू प्रूव दिस? ठीक है, सो व्हाट वी डू हियर इज, ठीक है, वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से ABC आपका है, हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस फॉर्म, तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, वी ड्रॉप BD. ठीक है, वी ड्रॉप बेसिकली BD विच इज़ परपेंडिकुलर. तो हम कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं भाई साहब, BD. तो यहाँ पे आपका ABC, ADB और BDC भाई साहब आपका सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ABC और ADB अगर हमने उठाया तो वी कैन से दैट AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AB. ठीक है, AB बाई AD विल बी इक्वल टू AC बाई AB. ठीक है, और हम AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AD इंटू AC. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, अभी हम यहाँ पे BC स्क्वायर है तो ABC और BDC उठा लिया. ठीक है, अगर हमने इन दोनों को उठाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, BC स्क्वायर हो गया. इतना इन दोनों को ऐड कर दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, AD इंटू AC. AC को कॉमन निकाला और AD प्लस DC हो जाएगा, और AD प्लस DC आपका क्या होता है, AC. ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, सो आपको भाई साहब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है. ठीक है, सो अपन ने क्या ले लिया भाई साहब, एक ट्राइंगल ले लिया. ठीक है, लेट्स से वी हैव टेकन अ ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC. सो यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया हुआ है भाई साहब, ट्राइंगल ABC which is right angled at B. ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B. ये आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जो कहाँ पे, राइट एंगल्ड है B पे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है बोलो, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है. टू प्रूव दैट AC का स्क्वायर क्या है आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो AC का स्क्वायर आपके AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या करते हो भाई साहब, कंस्ट्रक्शन. व्हाट डू, यू बेसिकली डू अ कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कर दिया भाई साहब, कंस्ट्रक्शन में आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया D. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ड्रॉप परपेंडिकुलर BD
टू AC। अभी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ठीक है, प्रूफ में हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, देखो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कैसे भाई साहब आपका क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे भाई साहब, A और B के बीच में किसको ठूसेंगे, D को, है ना। अरे भाई साहब इन दोनों के बीच में एक बार D को ठूसोगे और फिर BC के बीच में एक बार D को ठूसोगे, तो आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADB and this is congruent to triangle BDC। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है, ठीक है। थ्योरम क्या हो जाएगा यहां पे बोलो, if a perpendicular is dropped from the right angle of a triangle to the hypotenuse, then it divides it into two similar triangles, two triangles which are similar to each other, two triangles which are similar to each other, and it divides into two triangles which are similar to each other and to the original triangle, ठीक है। If a perpendicular is dropped from the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, it divides into two triangles which are similar to each other and to the original triangle, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब। अभी अपन क्या बोलेंगे, देखो अभी सीक्वेंस से खेल जाओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाओ, ठीक है। सो टेकिंग ट्राइंगल ABC टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, AB। अपने को ये देखना है भाई साहब कहां से AB मिले, कहां से BC मिले और कहां से AC मिले, ठीक है। तो AB इधर से मिल जाएगा, तो AB बाई AD है ना भाई साहब, AB बाई AD विल बी इक्वल टू AC बाई AB, है कि नहीं, विल बी इक्वल टू AC बाई AB, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, AC बाई AB क्या हो जाएगा बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AB। अभी अगर हमने इसको इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल गिव यू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, टड़ंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है, या इस पे ले लेंगे अपने को भाई साहब, यहाँ पे क्या चाहिए, BC चाहिए ना, तो हमको BC यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। टेकिंग सिमिलैरिटी कौन सा भाई साहब, ट्राइंगल ABC टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, क्या बोल सकते हैं बोलो यहाँ पे, AB बाई नहीं अपने को चाहिए भाई साहब BC ना, AB हमने ले लिया इधर से AB स्क्वायर, अभी अपने को BC चाहिए, राइट, BC भाई साहब सीधा BC को ही उठाते हैं ना, ठीक है। सो अगर हमने भाई साहब इस BC को उठाया, BC बाई कौन सा भाई साहब, DC इज इक्वल टू BC बाई DC, दूसरे में भी आपको आ रहा रुकना, यहाँ पे BC चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी BC और यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब AC। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, देखो आपको ना क्या लाना है, देखो यहाँ पे AB स्क्वायर लाना है। AB स्क्वायर कैसे आएगा, जब इधर भी OB हो और इधर भी OB हो, तो आप कैसे लेंगे भाई साहब, AB अपॉन AD इज इक्वल टू, दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, AB अपॉन AD, मतलब ये AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB, तभी तो जाकर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में AB मिलेगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर, ठीक है। तो यहाँ पे AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AB क्यों लिया हुआ है हमने, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ठीक है। ABC और BDC है भाई साहब आपका, ठीक है, ABC और BDC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी AC, दिस विल बी BC बाई DC, हमको क्या चाहिए अभी, BC चाहिए, है ना। तो BC बाई DC विल बी इक्वल टू, दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या देखेंगे, AC बाई BC,
क्योंकि यहाँ पे BC इंटू BC आपको क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर, तो दिस विल बी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, ठीक है, AC इंटू DC। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग 1 and 2, what do we get बच्चा पार्टी, we get what, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यहां पे ध्यान से, AB स्क्वायर और ये हो गया आपका BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड को हमने वही रखा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, हमने AC को बाहर निकाला, सो AC विल बी इक्वल टू AD प्लस DC। क्या ये समझ में आ रहा है, AC को बाहर रखा हमने तो अंदर क्या हो जाएगा, AD प्लस DC। सो व्हाट डू वी गेट पीपल, हम AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट विल बी AC इंटू AD प्लस DC। AD प्लस DC कितना हो जाएगा, AC, है ना भाई, ये AD प्लस DC देखो क्या होगा, ये AD और प्लस DC, तो ये क्या हो जाएगा, AC। तो हम यहाँ पे देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यही है भाई साहब आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जिसको अपन पता नहीं 7th 8th 9th जो भी है हमने यूज किया है, उसका ये प्रूफ है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टेक अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल, and from the right angle triangle you drop a perpendicular to the hypotenuse. Now we have already studied that when we drop a perpendicular from the right angle to the hypotenuse, it actually divides it into two triangles which are of similar area and similar to the original triangle as well. Sequence कैसे लिखेंगे, sequence कैसे लिखेंगे भाई साहब, ये तीनों triangles, ये वाला triangle, ये वाला triangle और ये वाला triangle, ये आपके similar होंगे। sequence कैसे लिखना है, आपने पहले क्या करना है, ABC लिख लेना है। ABC आपने पहले लिख लिया, अभी आप क्या करोगे भाई साहब, ये जो ABC है तो A और B के बीच में D को ठूसना है, तो ADB हो गया। अभी ये जो BC है, B और C के बीच में D को ठूसना है, ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस दे देगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। अभी आपने क्या किया भाई साहब, आपने देखा कि इसमें AC स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर को फिलहाल अपन नेग्लेक्ट करते हैं, वी विल टेक फर्स्ट द AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को कैसे लेंगे भाई साहब, इधर ऊपर न्यूमरेटर में AB होना चाहिए और द डिनोमिनेटर में AB होना चाहिए, ताकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को AB स्क्वायर मिल जाए। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाते हैं तो ये एक AB अपॉन AD, ये एक फ्रैक्शन हो गया। दूसरे फ्रैक्शन को अपने को क्या लेना है कि ये AB डिनोमिनेटर में आ जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, ठीक है। वही सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ठीक है, AC इंटू AD। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। दूसरा क्या करेंगे भाई साहब अपन, ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक बेसिकली व्हाट, BC स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स उठा लेते हैं, BC स्क्वायर चाहिए अपने को, BC अपने को ये दोनों ट्राइंगल से मिलेगा। देखो ये एक BC है और यहाँ पे एक BC है, तो पहले वाला अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर में BC को रखेंगे, तो BC अपॉन DC विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। समझ में आ रहा है कैसे ले रहे हैं हम, AC अपॉन BC, ताकि अपने को इन BC के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल जाए, BC का स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन दिस विल बी ऑल्सो व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इफ वी हैपन टू ऐड बोथ ऑफ दीज, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी हाउ मच, AC को आपने कॉमन निकाला हुआ है, AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, तो AC को आपने बाहर निकाला, AD प्लस DC हो गया। AD प्लस DC आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, AC, ठीक है। तो AC इंटू AC विल गिव यू हाउ मच, AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया आपका भाई साहब AC का स्क्वायर। दैट इज बेसिकली योर पाइथागोरस थ्योरम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। तो एडिंग 1 3, तो यहाँ पे भाई साहब आपका AC, ये हो गया AC का स्क्वायर, ठीक है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। चल इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट। कर रहा है तू, बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, टाइम पास कर रहा है तू, है ना।
हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे सीखा है, प्रूफ अभी आपको अप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिराइव करने को क्वेश्चन में आ सकता है, बट हियर यू हैव टू अप्लाई द थ्योरम बस। गुड, 36 आया है, ओके ओके। लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो एक, हाँ ओके, ये एक लैडर है बेसिकली 10 मीटर लॉन्ग। दिस इज लैडर 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज द विंडो 8 मीटर, ये 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 10 मीटर लॉन्ग है भाई साहब लैडर, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो, यहाँ पे भाई साहब आपका विंडो है, ठीक है, और विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये लेट से आपका ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, रीचेज अ विंडो, दिस इज बेसिकली अ लैडर। और हमेशा आप जब भी वॉल वगैरह कुछ भी लेंगे, इट विल बाय डिफॉल्ट बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। कोई वॉल ऐसा नहीं रहता है ना, ऐसा रहता तो फिर तो बात ही कुछ और थी, ठीक है। तो ये वॉल वगैरह हो गया जो भी आपका है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग का लैडर है, इट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, रीचेज अ विंडो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सो दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ द वॉल एंड दिस इज द फुट ऑफ द वॉल, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब फुट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द वॉल, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका बेस ऑफ द वॉल, ठीक है, फुट ऑफ द वॉल एंड बेस ऑफ द वॉल। बताइए भाई साहब क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, लेट से हमने नामकरण कर दिया इसका ABC, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है नहीं, ठीक है, बाई 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 पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 64, तो 100 माइनस 64 हो गया आपका 36, दैट इज AB का स्क्वायर। सो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज गोइंग टू गिव यू 6, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 6 मीटर्स, ठीक है, 6 मीटर्स, ओके। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल एंड द बेस ऑफ द वॉल। हाउ मच वुड बी द डिस्टेंस, 6 मीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को लगाया है। पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के पहले भाई साहब मेरा आपसे गुजारिश है कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आपके याद होने चाहिए। 19 स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 19 स्क्वायर इज 381। क्या करोगे फिर, स्क्वायर रूट निकालोगे, वो भी निकालना नहीं आता होगा, आता है कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा? चलिए 19 का स्क्वायर होता है 381। हाउ वुड यू फाइंड द स्क्वायर रूट? ये भाई साहब बहुत बोलने में ना ये आता है पाइथागोरस है भाई साहब, क्या है, फंसोगे तब जब आपको भाई साहब स्क्वायर रूट नहीं आता होगा, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ 381 अगर आपका आया तो अंडर रूट ऑफ 381 19 होगा, लेकिन ये आप तब जानेंगे ना भाई साहब जब आपको 19 स्क्वायर मालूम हो। अंडर रूट ऑफ 529 ये कितना होगा, 20 नहीं, 5 तो हो ही नहीं सकता, नहीं 23 होगा भाई साहब, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, ओके। 676 26, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 676 होगा आपका 26, ठीक है। ये आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। 1 स्क्वायर हो गया, 1 2 स्क्वायर हो गया, 4 3 स्क्वायर हो गया, 9 4 स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर, देखो 16 की टेबल नहीं आती इसका मतलब 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 381, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर ये क्या ना भी आपने 529, ठीक है, 24 स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आपको आने चाहिए। और अगर नहीं आता है तब क्या करेंगे, जैसे हम लोग 529 निकालना है तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे भाई साहब स्क्वायर रूट, आधे से ज़्यादा पब्लिक को ना यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपको आता है कैसे? हाँ
529 का स्क्वायर रूट निकालना है, बताइए। दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि खुद ही प्राइम फैक्टर है भाई साहब, ठीक है, आप फंस जाएंगे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करने जाएंगे तो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वाकई में स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कीजिए। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, 2 के टेबल से। क्या 2 के टेबल से क्या देखेंगे, लेकिन टेबल पे जाने के पहले एक और चीज आपको करनी पड़ेगी, वो क्या है, 2 का टेबल आप नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं, चलिए सही है, लेकिन उसके पहले एक स्टेप आपको निपटाना पड़ेगा, वो क्या होगा आप बताइए। देखो तुम लोग कितने कमजोर हो मैथ्स में, देख रहे हो, ये बेसिक्स हैं। तिवारी जी बोलिए। आपको पहली चीज जो करनी है वो है पेयरिंग। पेयरिंग में हम करते क्या हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट। तो पहला पेयरिंग ये हो गया और ये दूसरा पेयरिंग हो गया। अब इस पेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, आप ऐसे भाई साहब 529 इसको लिखेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। अभी हम देखेंगे 5 है यहाँ पे, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाता है। तो अपन सिर्फ ये स्पेशल डिवीजन है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 2 और 2 जा 4, कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे बचा 1। अभी ये 29 पूरा का पूरा नीचे उतरेगा, इसीलिए अपन इसकी पेयरिंग कर रहे थे, वी वर डूइंग अ पेयरिंग फॉर दिस, ठीक है। नाउ डबल ऑफ 2 इज व्हाट, 4, ठीक है, इस वाले 2 का इस वाले 2 का डबल ले लीजिए 4। अभी हमको देखना है भाई साहब यहाँ पे 129 लाना है, यहाँ पे एक डिजिट होगा, जिस डिजिट को सेम डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 आपका कब आता है, 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49। तो पहला जो आप करेंगे वो आप करेंगे 43 इंटू 3 और दूसरा आप करेंगे 47 इंटू 7 इन केस ये सक्सेसफुल ना हुआ तो, ठीक है। यहाँ पे आप बाई चांस आपको मिल रहा है 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपने 3 किया, ये 3 हुआ भाई साहब, ये हो गया 129। सो ऑब्वियसली फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 529 यू कैन राइट इट एज 23, ठीक है। अदरवाइज आप 7 चेक करते थे क्योंकि 7 7 जा भी 49 देता है। क्लियर है, आर वी क्लियर। ये चीज़ भाई साहब लोगों को नहीं आती है, प्लीज़ कोई भी नंबर उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब एक लैडर है, लैडर को रखा गया भाई साहब विंडो पे। इस लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर्स, ठीक है, और इसका भाई साहब विंडो से हाइट कितना है, ठीक है, 8 क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, 8 मीटर्स, ठीक है। ओके, सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द वॉल, द बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन क्या, तो AB represents the highest at which the ladder reaches the window above the ground, ठीक है। So AB is equal to 8 and AC is equal to 10, triangle ABC is equal to 90 degree, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, so this will be 10 का स्क्वायर is equal to 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, so that will be 36, so BC will be how much, 6 meter, ठीक है, BC is going to be 6 meters, are we clear on this one people? Just one momentum people. Okay, a guy wire is attached to a vertical pole of height 18 meter, is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Taut मतलब समझते हैं भाई साहब, टाइट हो, ठीक है। ये देखो एक वायर है ऐसा, ये टाइट रहना चाहिए, ढिल्ला ढिल्ला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एक वायर है, इसको अपन ने किया हुआ है। A guy wire is attached to a vertical pole of height, इसका भाई साहब हाइट कितना है, 18 मीटर है, ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग। ये वाला भाई साहब आपका कितना है, 24 मीटर लॉन्ग, ठीक है। क्या पूछा है आपको, 20 मीटर एंड स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो ये भाई साहब आपका क्या है, बेस ऑफ द पोल है, दिस इज द बेस ऑफ द पोल। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक, यहाँ पे एक स्टेक है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्टेक, ठीक है। स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉप, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम में ए बी और ये हो गया भाई साहब आपका सी, तो अपन क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 18 का स्क्वायर, ठीक है, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो यहाँ से ना सवाल के दो तरीके हैं करने के,
एक तो आप भाई साहब 24 का स्क्वायर निकालिए और 18 का स्क्वायर निकालिए, उन दोनों को माइनस कीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालिए। दिस इज वन थिंग। तो कर लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी अगर आपको मालूम होगा तो ठीक है, वरना जैसा मेरा अनुमान है आपको मालूम नहीं रहेगा। तो ये आएगा भाई साहब 576। 18 मतलब होता है आपका 324, तो ये हो गया आपका 324, दैट इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ये बी सी का स्क्वायर कितना हो गया, 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया भाई साहब 5, 5 से 3 गया 2। सही आ रहे हैं भाई साहब हम। 576, 24 का स्क्वायर नहीं, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576 ही होता है। 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5, ठीक है। तो BC का स्क्वायर कितना आ गया आपका 252। तो BC कितना आ जाएगा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 252। अंडर रूट ऑफ 252 में कितना आ जाएगा, इसको भाई साहब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन तो 252, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 21 जा 3 7 जा, और ये हो गया 7 1 जा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू BC। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2 बाहर आया 3 बाहर आया 6 अंडर रूट 7, 6 अंडर रूट 7 हो गया ये, ठीक है। इसी को अगर भाई साहब हम दूसरे तरीके से करें तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये 24 को इधर ले लिया तो 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दैट विल बी 24 माइनस 18 इंटू 24 प्लस 18 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। समझ में आता हूँ, ठीक है। तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा बोलो, 6, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड 24 प्लस 18, 4 प्लस 8 12, 2 प्लस 1 3 1 4 42, दिस इज इक्वल टू BC। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो भाई साहब BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इंटू 7, 6 के स्क्वायर से भाई साहब 6 बाहर निकला और अंडर रूट 7, सो दिस विल बी BC, ठीक है। BC की वैल्यू ऐसे निकालो तो भी 6 अंडर रूट 7 आएगा और ऐसे निकालो तो भी, लेकिन ये अंडर रूट 7 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, ओके। अंडर रूट 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपका आंसर आया कितना, BC इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 7। इस अंडर रूट 7 को भाई साहब कैसे करना है, तो 7.00। जो नियम हम लागू करते हैं वो ये है कि भाई साहब डेसिमल प्लेस के पहले पेयरिंग राइट टू लेफ्ट होती है और डेसिमल प्लेस के बाद पेयरिंग लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 होगा, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, 7 से 4 गया तो कितना आया 3, और ये दोनों जीरोज एक साथ उतरेंगे तो 0 0। ये 2 का डबल कितना हो गया 4, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ओके। बताइए यहाँ पे 4 का हम कौन सा फैक्टर लेके 0 0 आए, तो 40 भाई साहब 42 इंटू 2 करेंगे तो 84 आएगा, है ना। 45 इंटू 5 करें तो 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22। 46 इंटू 6 करें तो 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 25 तो 27 हो गया। 47 इंटू 7 करें, 7 7 जा 49, 4 7 जा 28 प्लस 4 32, तो ये नहीं चलेगा, 6 तक ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन 6 कर रहे हैं और यहाँ पे 6 6 जा 36, 4 6 जा 24 और ये हो गया 27, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10, 9 से 7 गया 2, तो कट गया भाई साहब 2 4। अब ये दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे, 26 का डबल कितना हो जाएगा भाई साहब, क्या हुआ 52, ठीक है 52। अभी हमारे पास यहाँ पे 2400 है, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है तो इसको ले लेते हैं 524 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 5 4 जा 20, जा तो रहा है ये, ठीक है। एक और 5 का ट्राई कर लेते हैं, तो 525 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 11 12, 5 5 जा 25 और ये हो गया 26, ये नहीं चलेगा, तो 4 में ही अपने को क्लोज करना है। 524 इंटू 4, यहाँ पे कितना हो गया 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 5 4 जा 20, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस 4 10, 9 से 9 गया 0 3 304, ठीक है। तो अपन यहाँ तक ही रखेंगे तो भी चलेगा। तो 6 अंडर रूट 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू
2.64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 6 24, 6 6 36, 37, 38, 6 2 12, 13, 14, 15, अप्रॉक्सीमेटली इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गेट दी आंसर। वाह, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब देखो, टॉट मतलब क्या होता है, ऐसा देखो रस्सी मतलब एकदम खिंची रहे। ठीक है, तो ये आपका 18 मीटर का हो गया भाई साहब पोल। तो यू विल हैव टू बेसिकली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दिस इज द स्ट्रिंग विच हैज टू बी टॉट। ठीक है, विच हैज टू बी टॉट। सो ए बी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, और ये भाई साहब आपका स्ट्रिंग है। ए सी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वायर। बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द बेस ट्राइंगल ए बी सी। तो आपका ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 576, बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 252। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√7। इसमें भी आप आंसर रख सकते हैं, और एक्चुअली में 6 को √7 से मल्टीप्लाई करके जैसा हमने किया था वैसा भी ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक। Done, done, done. An aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर। ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई साहब। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर में। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई साहब देखो, एक एरोप्लेन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ड्यू नॉर्थ। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई साहब, 1000 किलोमीटर पर आवर। और एक भाई साहब किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, ले द सेम एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट। तो आपको मालूम है नॉर्थ होता है भाई साहब, ये होता है भाई साहब आपका ईस्ट, ऑब्वियसली दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। सो वन एरोप्लेन एट द सेम टाइम फ्लाइज ऑफ फ्रॉम एयर एंड इट इज फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच, और कितना गया भाई साहब आपका, कितना, 1200 किलोमीटर पर आवर। अभी आपसे पूछा है कि इन दोनों प्लेन्स के बाद बीच में डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, आफ्टर 1.5 आवर्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर्स कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर्स कितना हो जाएगा बोलो, दैट इज 3/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, बोलिए बोलिए बोलिए, कितना हो जाएगा भाई साहब। देखो 100 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आपका भाई साहब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर इनटू भाई साहब टाइम कितना हो गया, 3/2 आवर्स। ये कैंसिल 2 50 100 और ये 0, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1200। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 1200 किलोमीटर्स पर आवर इनटू अगेन 3/2 आवर्स। ठीक है, ये आवर और आवर कैंसिल हो गया, 2 हो गया 600, तो ये हो गया भाई साहब कितना आपका 1800 किलोमीटर्स। तो इनके बीच में अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये कितना कवर कर चुका है, 1800 किलोमीटर्स, एंड हाउ मच हैज दिस डिस्टेंस बीन कवर्ड, 1500 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस पूछा है, समझ में आ रहा है। आफ्टर 1.5 आवर्स इसका इतना डिस्टेंस हुआ, आफ्टर 1.5 आवर्स इसका इतना डिस्टेंस हुआ। तो अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से इफ वी हैपन टू नेम दिस एज ए बी एंड सी, तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हो गया कितना, 1500 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 1800 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 225। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 549 इंटू दिस। ठीक है, इसका आपको भाई साहब स्क्वायर रूट निकालना है। इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा भाई साहब कितना,
10 और इसका भी भाई साहब 10, तो ये हो गया 100। अभी बचा आपका 549, ठीक है। 9 + 4 13, 13 + 5 कितना होता है 18। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं थोड़ा सा। 549 को 3 27 ज़ा 54, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 7 13 ज़ा होता है ना, 7 1 ज़ा 7, 9 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज 549 कैन बी रिटन एज व्हाट 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। तो जिसमें अपन क्या बाहर कर लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 13, आई एम सो सॉरी 7 इंटू 13 दैट इज 91, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 जीरोज ऑलरेडी बाहर रखे थे, तो 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 91, तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 10 ज़ा 100, 100 इंटू 3, तो ये हो गया 300 अंडर रूट 91, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, 300 अंडर रूट 91। सो यहाँ पे अपन देखेंगे भाई साहब, देखो 1000 किलोमीटर पर आवर से वो ड्यू नॉर्थ जा रहा है और 1200 किलोमीटर पर आवर से वो ड्यू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। सो 1.5 आवर्स मतलब हो गया आपका कितना 3/2 आवर्स। सो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर कितना किया होगा भाई साहब, ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3/2, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 1500 किलोमीटर्स। एंड सिमिलरली द डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट्स हाउ मच, स्पीड इज 1200 इंटू 3/2 दैट इज 1800, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1200 एंड 1800, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 549। तो अपन ने देखा भाई साहब यहाँ पे 549 कितना हो जाएगा, 61 था कि 91 था, 91 ना, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 61 था क्या, 549 को अगर हम डिवाइड करते हैं 350, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, हाँ 61 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका भाई साहब 9 इंटू 61 होगा, ठीक है, 61, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 3 अंडर रूट 61। सो दिस विल बी, इस इन दोनों का 100 का भाई साहब एक 10 बाहर आ गया और इस 9 का 3 बाहर आ गया, तो 300 अंडर रूट 61। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स इज 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर्स। आर वी क्लियर आफ्टर 1.5 आवर्स, क्लियर है भाई साहब। अगेन अपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चा पार्टी पढ़ाई करते रहिए, बहुत जरूरी है। We actually proved Pythagoras theorem and now we are going to continue with Pythagoras theorem, ठीक है। ओके कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर, 2 poles हैं, height 6 मीटर 11 मीटर, stand on a plain ground। If the distance between the feet of the poles is 12 मीटर, find the distance between their tops। चलिए फटाफट करना है इसको। ओके देखो यहाँ पे 2 पोल्स हैं, ठीक है, दैट इज 6 मीटर 11 मीटर, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। तो एक प्लेन ग्राउंड पे 2 पोल्स स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ प्लेन ग्राउंड एंड 2 पोल्स विच आर ऑफ हाइट हाउ मच, एक का हाइट है भाई साहब आपका 11 मीटर और दूसरे का हाइट है भाई साहब आपका 6 मीटर, ठीक है। सो दीज आर 2 पोल्स, वन इज ऑफ हाइट 11 मीटर and the other one is of height 6 meters, ठीक है। stand on a plain ground, if the distance between the feet of the 2 poles, इन दोनों के बीच में जो distance है that distance is how much 12 meters, ठीक है। this distance is basically 12 meters, clear है, okay। so the 2 poles of height 6 meter 11 meter stand on a plain ground, if the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops। तो इनके बीच में जो टॉप्स में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाई साहब, ये वाला, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज पोल 1, ठीक है, एंड दिस इज पोल 2, ठीक है। ये भाई साहब हो गया आपका ग्राउंड, दिस इज बेसिकली द ग्राउंड। आपको इन दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो लेट्स से हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे हो गया आपका लेट्स से ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ए बी सी डी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमने डिस्टेंस बना दिया
ये हो गया आपका ई, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली डिस्टेंस ए डी, क्या ये समझ में आ रहा है, ये आपका ग्राउंड है, मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बी सी डी ई को एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी पोल कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, हमेशा ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाएगा, तो ये राइट एंगल होगा, ये पोल भी भाई साहब ग्राउंड के साथ क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, इस डी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ये आपको प्रूफ के बतौर बताना नहीं है, ठीक है, यू कैन जस्ट से दैट, लेट्स से हमने यहाँ पे बता दिया डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल बी सी डी ई, क्वाड्रिलैटरल बी सी डी ई ये क्या हो जाएगा बोलो, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इतना बोलेंगे तो ही काफी है, रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि ईच एंगल हियर इज ऑफ 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू ED, वाई BC इज इक्वल टू ED, वाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, opposite angles of a rectangle are, sorry, opposite sides of a rectangle are equal, opposite sides भाई साहब क्या हो जाएंगे, equal, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore ED is equal to 12 meters, are we clear on this one people, हम ED आपका कितना हो जाएगा, ED will be equal to 12 meters, ठीक है, क्लियर है, मुझे बताओ यहाँ पे BE कितना हो जाएगा या EB कितना हो जाएगा, EB will be equal to DC, है कि नहीं, अगेन वही सेम चीज, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो EB इज इक्वल टू DC, तो EB की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मीटर्स, ठीक है, EB की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 6 मीटर्स, ओके, सो लेट्स से दिस इज हाउ मच, 6 मीटर्स, ठीक है, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब AB माइनस EB, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है 11 मीटर्स माइनस 6 मीटर्स, दैट इज हाउ मच 5 मीटर्स, ठीक है, तो AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बच्चा बाड़ी, AB की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 5 मीटर्स, ठीक है, दिस इज हाउ मच 5 मीटर्स, ठीक है, तो अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, कौन से AED में, वी कम टू दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED आपका भाई साहब ये वाला एंगल 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, नींद आ रही तेरे को बहुत जोर से, है ना, तो एंगल AED की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज, ठीक है, तो क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वी कैन बेसिकली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा सूरज, पाइथागोरस थ्योरम, अरे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, बोलो कितना होगा आरुष, AC स्क्वायर प्लस नहीं, तो AC स्क्वायर यहाँ पे आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, दिस इज बेसिकली व्हाट पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आता हूं, AD स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी AD का स्क्वायर, तो दिस विल बी AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का, ठीक है, यहाँ पे कितना स्क्वायर हो गया बोलो 5 स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 25 प्लस 144, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 169, तो देयरफॉर AD कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169, दैट इज 13 मीटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका AC, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं होगा AD, ये तो हमने बनाया हुआ है, हमारा आंसर क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, the distance between the tops of their poles is 13 meters, ठीक है, so this is going to be our answer, the distance between the top of the poles is 13 meter, are we getting this people, हम क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, is this clear to everyone, okay, ओके, सो यहाँ पे देखो अगर इस सवाल को अपन देखते हैं, यहाँ पे ये दो पोल्स हैं, ठीक है, AB हो गया भाई साहब 11 मीटर का, ये हो गया 6 मीटर का, AB एंड DC रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ टू पोल्स, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ग्राउंड में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना क्या है
12 मीटर का, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ए डी को ज्वाइन किया, बी सी एंड ए डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट एंड द टॉप्स। तो आपका ए डी बेसिकली इज द डिस्टेंस विच इज देयर बिटवीन देयर टॉप्स एंड बी सी इज द डिस्टेंस विच इज देयर बिटवीन देयर बेसिस, ठीक है, ओके, ऑन द ग्राउंड। ओके, सो आपका भाई साहब इस तरीके का फिगर बन रहा है, आपको ए डी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए डी फाइंड आउट करना है। तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो डी एम ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एम बी सी डी भाई साहब क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो डी एम इज इक्वल टू बी सी, तो डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी के बराबर, ठीक है, दैट इज 12 मीटर्स। और आपका भाई साहब डी सी का क्या हो जाएगा, एम बी के बराबर, दैट इज 6 मीटर्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 11 माइनस 6, दैट इज 5 मीटर्स। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5, और डी एम की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डी नाउ, ठीक है। तो आपका इन ट्राइंगल ए एम डी, एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, सो दैट इज 169। ए डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 13 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 13 मीटर, ठीक है, क्लियर हम, ओके ओके ओके। अभी 12 में ना, ओके, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। आपको ये प्रूव करना है फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। यार ओ टाइम पास लोग क्या हो रहे। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई साहब, राइट एंगल एट सी। आपको यहां पे प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एसी के स्क्वायर के बराबर है। देखो इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा, यहां पे आपका राइट एंगल कहां पे, सी पे है ना। सो दिस विल बी द राइट एंगल, ये ए बी और ये सी हो गया, यहां पे ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। गिवन यहां पे आपका ट्राइंगल, गिवन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, और यहां पे और क्या है भाई साहब, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी आपका बराबर है, ठीक है। आपको यहां पे क्या करना है भाई साहब, टू प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर भाई साहब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप बताइए क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू, फटाफट फटाफट, इजी, एकदम इजी है। क्या लिख सकते हैं बोलो, ये सब भूल जाओ, क्या लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, हाँ, ए बी स्क्वायर, फटाफट फटाफट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस, अरे सिंपल तो है यार,
ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कैन वी राइट दिस पीपल? ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो ए बी का स्क्वायर भाई साहब किसके बराबर हो गया? अभी यहां पे देखो बी सी जो है, ठीक है, ये ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, यहां पे 1 और ये लेट्स से 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो जाता है भाई साहब आपका हेंसा प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज बेसिकली हेंस प्रूव। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो यहां पे आपने देखो एक ट्राइंगल लिया हुआ है जहां पे BC और AC बराबर है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? AC और BC, AB का स्क्वायर बेसिकली ट्वाइस AC के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ, तो ट्राइंगल ACB, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC इज इक्वल टू AC, तो AB स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हर चैप्टर पे अपन मैथ्स में सवाल कर रहे हैं, और हो सकता है जब मैं यहाँ पे सवाल दूं तो कुछ सवाल आपसे हो पाएं और कुछ सवाल आपसे नहीं हो पाएं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट द वंस विच यू आर नॉट एबल टू फिनिश बाय योरसेल्फ? जो आप खुद नहीं कर पाए हैं, आइडियल सिनेरियो में उन सवालों का नोट बनना चाहिए, ताकि आप भाई साहब उसको रिवाइज कर सके, क्योंकि जो सवाल आप पहले अटेम्प्ट में कर पा रहे हैं इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ गया है, यू नो हाउ टू अप्लाई इट। लेकिन जो सवाल आप पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं, सो देन देयर इज अ रिवीजन दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन वो रिवीजन संभव तभी हो पाएगा जब आप उसका नोट बना रहे होंगे, विच आई डोंट सी हैपनिंग। मैथ्स को लर्न करने का यही प्रोसेस है। मैथ्स में आप हर चैप्टर में जाएंगे तो सवालों की लिस्ट मिलेगी आपको, 10-15 सवाल होंगे, 10-15 सवाल में कुछ आप सॉल्व कर पाएंगे, कुछ आप नहीं कर पाएंगे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। द वंस विच यू वर एबल टू सॉल्व इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन इट मीन्स दैट यू आर thorough with the concept, and the ones you were not able to solve, then it means that it needs a revision। उसको फिर से सॉल्व करके देख कर उसका भाई साहब अलग से नोट बनना चाहिए, जो आप शायद नहीं कर रहे हैं। शायद क्या, यही सत्य है ना? और इसीलिए मैथ्स के साथ आपका डिस्टेंस या स्ट्रगल हमेशा बना रहेगा। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सारे सवालों का नोट बने जरूरी नहीं है। जिन सवालों को आप आराम से कर पाते हैं, लेट इट बी, बट द वंस यू वर नॉट एबल टू डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दे डेफिनेटली रिक्वायर अ रिवीजन, और उनको करना है। ठीक है, ये आप मिस कर रहे हैं, और इसलिए यही फाउंडेशन है मैथ्स का। इसी तरह से मैथ्स को करना है। आपकी एक अलग से नोटबुक बनी होनी चाहिए जहां पे आप सारे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको करेंगे। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स विच वेर अटेम्प्टेड बाय यू बट नॉट फिनिश्ड ऑफ बाय यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus, ठीक है, एक rhombus का is equal to the sum of the squares of its diagonals। चलिए फटाक से करना है भाई साहब, क्विक कैश, जल्दी 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 फटाफट।
हो गया डन? अरे भाई साहब हुआ कि नहीं? रोम्बस क्या होता है काव्या? रोम्बस क्या होता है? टिल्टेड स्क्वायर। ओके, टिल्टेड स्क्वायर मतलब क्या होता है? सारे साइड्स बराबर होंगे, लेकिन जैसे स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वैसा रोम्बस में नहीं होगा, ठीक है? इट विल बी अ टिल्टेड स्क्वायर। ओके, चलिए वैसा पहले एक रोम्बस ले लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ रोम्बस। रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी बताइए। एक तो भाई साहब आपके सारे साइड्स बराबर होंगे, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, एंड as we have in a square that all angles are 90 degree, that is something that we will not have in a rhombus. All angles are of generally not 90 degrees. Now tell me another property that you are aware of in rhombus. हाँ, वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है। rhombus की स्पेशल प्रॉपर्टी पूछा हूं। So what he is saying is diagonals bisect each other. क्या rhombus एक पैरेललोग्राम है बच्चा पार्टी? है कि नहीं है? हाँ या ना? अरे भाई साहब rhombus एक पैरेललोग्राम है, is it or is it not? इट इज राइट। तो आपका रोम्बस में जो डायगोनल्स होंगे दे विल डू व्हाट? दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? लेकिन रोम्बस की खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या? बाइसेक्ट ईच अदर मतलब समझ लो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है? और भाई साहब ये और ये बराबर होगा। सो व्हाट वी मीन टू से इज AO और CO बराबर होगा, DO और BO बराबर होगा। और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी युवराज? बट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही, पैरेललोग्राम है वो। संजम ये सब भाई साहब 7th 8th में पढ़ चुके हैं आप। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। हर एक एंगल यहां पे भाई साहब बीच वाला वो होगा 90 डिग्रीज का, ठीक है? तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? इन रोम्बस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है? तो हम यहां पे गिवन ले लेते हैं भाई साहब। यहां पे कुछ भी दिया नहीं हुआ तो आप लोग को गिवन लेना पड़ेगा। गिवन आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus. Quadrilateral ABCD is a rhombus, ठीक है? ओके, सो आपको यहां पे प्रूव क्या करना है? सो डायगोनल्स, ये डायगोनल्स AC and BD intersect at O. Diagonals AC and BD intersect at O. So what you have to prove here? To prove भाई साहब क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, BD स्क्वायर टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है? मतलब कोई भी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, दैट इज AB स्क्वायर प्लस कोई भी साइड उठा लो BC स्क्वायर्स, ठीक है? टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है? AB square plus BC square will be equal to BD square plus AC square. This is something that you have to prove, ठीक है? हाँ, कोई भी दो साइड उठा लो, ठीक है? अभी हम यहाँ पे ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं सम ऑफ द, हाँ चलिए, टू प्रूव मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाँ, सारे साइड्स होंगे यहाँ पे BD प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है? ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? क्लियर है? ओके, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? तो आपका यहां पे आता है भाई साहब प्रूफ, ठीक है? प्रूफ तो पहली बात तो ये हो गई, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। और यहां पे रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और क्या होगा? बोलो। AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ठीक है? यहां पे रीजन क्या डालेंगे? बोलो, व्हाट वुड बी द रीजन? ये जो मैंने लिखा है यहां पे, अभी मैंने शेयर किया आपके साथ, रीजन क्या होगा? काव्या, रश्मिता? नहीं, ये तो मैंने लिखा है यहां पे, ये दोनों चीजें लिखी हैं। रीजन क्या होगा? नहीं, प्रूफ में नहीं है, नहीं गिवन में भी नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर रोम्बस, सॉरी, डायगोनल्स ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है?
तो यहां पे होगा भाई साहब आपका डायगोनल्स ऑफ diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये डायगोनल्स हैं और ये आपकी प्रॉपर्टी है रोम्बस की. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. सो दिस इज बेसिकली द रीजन दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. ओके, चलिए भाई साहब अभी हम कोई एक ट्राइंगल उठा लेते हैं. जैसे यहां पे हमारा हो गया भाई साहब इन ट्राइंगल ए ओ बी. ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90. ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ए बी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो? ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर. कैन वी राइट दिस पीपल? ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. राइट एंगल का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है. तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन 1. सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे आप रीजन डाल दीजिए, क्या? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया आपका रीजन. सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? बी ओ सी. इन ट्राइंगल बी ओ सी आप क्या लिख सकते हैं बोलो? BOC में आप BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर. तो ये हो गया BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन 2. ठीक है, अगेन यहां पे पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल COD, ये कितना हो जाएगा बोलो? आपका CD का स्क्वायर हो गया आपका CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर. तो ये हो गया 3. दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, आपका भाई साहब यहां पे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर. ये हो गया आपका 4th वाला. ये भी आपका क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है भाई साहब? हर ट्राइंगल में आप क्या कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर. इसी तरह से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो नाउ व्हाट वी डू इज एडिंग 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो यहां पे एडिंग 1 2 3 एंड 4. क्यों ऐसा एडिंग कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. ठीक है, तो एडिंग कर रहे हैं. देखो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे. BC का स्क्वायर प्लस आपका भाई साहब CD का स्क्वायर प्लस आपका कितना आ गया? AD का स्क्वायर. दिस वुड बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ये पहला आपने लिखा. फिर इसके बाद प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, ये दूसरा आपने लिख रहा. फिर यहाँ पे प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर. ठीक है, प्लस आपका भाई साहब यहाँ पे DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर. आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे AO का स्क्वायर है और यहाँ पे एक AO का स्क्वायर है. कितना हो जाएगा बोलो? 2AO का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2AO का स्क्वायर. BO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 2BO का स्क्वायर. ठीक है, अभी यहां पे क्या है? CO का स्क्वायर और CO का स्क्वायर, तो 2CO का स्क्वायर, DO का स्क्वायर और DO का स्क्वायर, तो यहां पे 2DO का स्क्वायर. ठीक है, ओके. अभी भाई साहब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पे AO आप अगर देखोगे AO किसके बराबर? CO के बराबर. और BO किसके बराबर? DO के बराबर. ठीक है, तो क्या अपन यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब? AO की जगह पे AO ही लिखा, 2AO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस 2BO का स्क्वायर. ठीक है, ये वैसे ही रहने दिया. ठीक है, अभी इस CO के जगह पे क्या हम AO लिख सकते हैं? ठीक है, CO की जगह पे तो हम यहां लिख देते हैं भाई साहब 2AO का स्क्वायर. ठीक है, इस DO के जगह पे क्या BO लिख सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो यहां पे 2BO का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या रीजन इस्तेमाल किया है? AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. ठीक है, क्लियर है? ओके, अब कर लो भाई साहब यहां पे 2AO का स्क्वायर प्लस 2AO का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4AO का स्क्वायर, है ना? 4AO का स्क्वायर प्लस यहां पे
2BO का स्क्वायर प्लस 2BO का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4BO का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पे आते हैं, देखो सिंस O, हम यहां पे बोल सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, सिंस O इज मिड पॉइंट, सिंस O is midpoint of BD, what we can say is आपका भाई साहब BO का स्क्वायर, तो BO क्या होगा, हाफ ऑफ BD होगा कि नहीं, ठीक है, BO is equal to half of BD, similarly O is midpoint of क्या भाई साहब, AC, ठीक है, AC, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, AO is equal to half of AC, बोल सकते हैं भाई साहब, AO is equal to half of AC। तो आप देखो यहां पे अपन ने क्या लिखा था, what we had written is AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to this। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, सो यहां पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, यहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 AO के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो AO के जगह पे अपन हाफ AC लिख सकते हैं, तो 4 इंटू हाफ AC इसका स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, प्लस 4 इंटू BO के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD, तो हाफ ऑफ BD इसका स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी, 4, हाफ AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 AC का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1/4 AC का स्क्वायर, हाफ BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 BD का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 इंटू 1/4 BD का स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यहां पे हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सो दिस वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, ये था भाई साहब आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सो दिस इज हेंसा प्रूव्ड, हेंसा प्रूव्ड। ठीक है, आर वी क्लियर, तो यहां पे हमने एक रोम्बस ले लिया हुआ है, रोम्बस ABCD है, रोम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, एंड व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ABCD इज अ रोम्बस, टू प्रूव आपको यहां पे क्या करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स मींस AC प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव। सो प्रूफ में भाई साहब आपका क्या है, ABCD एक रोम्बस है, अगर ABCD रोम्बस है तो इन एंगल AOB, इन AOB, एंगल AOB भाई साहब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल होगा ये, दिस विल बी इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, AB का स्क्वायर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हो, AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। व्हाई, because diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other। ठीक है, diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other, तो आपका भाई साहब यहाँ पे AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, AB आपका किसके बराबर है, BC आपका CD, और CD आपका किसके बराबर है, AD के बराबर है। सो हम यहाँ पे therefore we can say that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको प्रूव करना है फटाफट। D and E are points on the sides C and CB respectively।
हाँ अच्छा, सवाल नहीं लिखा मैंने। ये सवाल इसको प्रूव करना है भाई साहब। D and E are points on the side C and CB respectively of a triangle ABC। तो आपका ABC कोई ट्राइंगल है भाई साहब, ये ABC कोई ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट C। तो ये राइट एंगल भाई साहब C पे है, लेट्स से A और B है, ठीक है। D and E are points on the sides CA पे पॉइंट भाई साहब आपका D है, एंड CB है, इस पे पॉइंट आपका भाई साहब क्या है CA एंड D and E। तो D and E are points on CA and CB of a right angle triangle ABC। प्रूफ दैट, आपको यहां पे क्या करना है, प्रूफ AE का स्क्वायर, ठीक है, AE का स्क्वायर, ये भाई साहब हो गया आपका AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यहां से आपने अगर BD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, मतलब DE को भी ज्वाइन कर दीजिए भाई साहब, ये DE, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। चलिए फटाफट फटाफट एवरीवन, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, फटाक से। हो गया क्या, डन डन डन। काव्या सवाल कर रही हो तुम, हाँ कि सो रही हो? प्रसन्ना क्या हो रहा है? स्टेट बोर्ड से कोई एब्सेंट नहीं है ना आज? एनीबॉडी एब्सेंट? नो। सीबीएसई से हनी और पिंकी ना, हु एल्स? हो गया भाई साहब, डन डन डन। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले लो भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा, ACE, इन ट्राइंगल ACE
आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम है ना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। फिर बी डी का स्क्वायर निकालना है अगर, तो कौन सा ट्राइंगल ले लोगे, इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अगर आप करोगे, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ठीक है। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, ओके। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो अपने को क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखते हैं, ठीक है, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगेन हाउ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए बी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो सी ई का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, इन अगर ट्राइंगल किस में, कौन से ट्राइंगल में देखोगे भाई साहब आप, तो यहाँ पे फ्रॉम आप अगर देखो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल देखो, सी डी ई, सी डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर क्या होगा बोलो, सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, है ना। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, और इसको अपन ने मान लिया लेट्स से इक्वेशन 5, तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम 3, 4 and 5, ठीक है। सो फ्रॉम 3, 4 and 5 अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया भाई साहब आपका ए बी का स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर का कितना वैल्यू आया, डी ई का स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यही प्रूव करना था। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है डी ई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए सी, तो हम यहाँ पे भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं, ट्राइंगल डी सी बी में अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, डी सी ई में भाई साहब ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मच दिस इज बेसिकली द प्रूफ, ठीक है। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए भाई साहब इसको करना फटाक से, भाई साहब फटाक से करना है। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, अभी तक हो जाना चाहिए सवाल। चले 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 फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन। बी एल एंड एल एम, देखो यहाँ पे बी एल और भाई साहब यहाँ पे देखो बी एल एंड सी एम आर मीडियंस। मीडियंस मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, मीडियंस मतलब यहाँ पे आपका इक्वली डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट ए। राइट एंगल कहाँ पे भाई साहब, ए पे। प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ बी एल प्लस सी एम का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ बी एल प्लस सी एम का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब पहले हम आते हैं किसमें, इन ट्राइंगल। तो यहाँ पे बी एल का स्क्वायर है, देखो इन ट्राइंगल इस बी एल को, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एल लिख सकते हो, है कि नहीं भाई साहब, ट्वाइस ऑफ ए एल लिख सकते हो। ए सी भाई साहब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एल, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। वाई, बिकॉज बी एल इज मीडियन,
बी एल इज मीडियन, मतलब एल आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बी भाई साहब किसके बराबर होगा, ये ए बी भाई साहब ट्वाइस ऑफ ए एम, है ना, ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है। अगेन रीजन इज भाई साहब क्या हो जाएगा, सी एम इज द मीडियन, सी एम इज मीडियन, ये दिया हुआ है भाई साहब आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, हम यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं एम ए सी, ठीक है। इन ट्राइंगल एम ए सी, इन ट्राइंगल एम ए सी, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, एम सी एम का स्क्वायर, देखो यहाँ पे सी एम है ना, यहां से हमने सी एम का स्क्वायर लिया, सी एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एम ए सी, वो तो है लेकिन सी एम का स्क्वायर क्या लिखूं मैं, इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी, एम ए क्या स्क्वायर, ओके, एम ए का स्क्वायर या ए एम का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए आगे बताइए, प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर, वाई भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आता हूं, ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई साहब अभी हम ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम बेसिकली क्या है भाई साहब, ए एम देखो भाई साहब ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, और इसका मतलब क्या है बोलो, ए एल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो ए एम की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, और ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे क्या है बोलो, सी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 1/4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो कितना आ गया बोलो, 4 सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आप भाई साहब यहाँ पे ये हो गया आपका लेट्स से 1 2 और ये हो गया आपका 3, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। अभी हम कौन से ट्राइंगल पे आते हैं भाई साहब, हमने पहले ट्राइंगल कौन सा लिया था, एम ए सी, नाउ लेट्स कम टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए बी एल, ए बी एल क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे भाई साहब, आपका बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ठीक है, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी मतलब क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी भाई साहब आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ ए एम है कि नहीं, ठीक है, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर को अपन ए बी स्क्वायर ही रखते हैं, ए एल के स्क्वायर को क्या करना है, देखो ए एल क्या है आपका, हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है, सो दिस विल बी हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ए बी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर, और यहां पे हो गया आपका बी एल का स्क्वायर, इस पूरे को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, तो कितना आ गया देखो, 4 बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, समझ, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 4 बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चा भाई, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 and 4, ठीक है, सो व्हाट वी डू इज एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4 कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 4 सी एम का स्क्वायर प्लस 4 बी एल का स्क्वायर, 4 सी एम का स्क्वायर प्लस 4 बी एल का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 5 ए बी का स्क्वायर, 4 ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 5 ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने 5 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या हो गया बोलो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 4, इसको अपन अंदर लिखे अगर तो सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भाई साहब आओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, वी नो दैट इन ट्राइंगल एबीसी आपका क्या हो जाएगा बोलो, बी सी का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4
इस BL को आगे लिख दो, CM को बाद में, क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। सो दिस विल बी 5 of BC का स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली योर हेंसा प्रूव्ड। ये हो गया भाई साहब आपका हेंस प्रूफ। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। सो मीडियंस हैं भाई साहब ये, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। सो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो BL का स्क्वायर हो गया ये, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 4। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में हमने देखा कि भाई साहब AB बाई 2 का स्क्वायर। सो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो दिस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 4BL प्लस 4CM का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5BC का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए वैसे इसको प्रूव करना है। यहां पे आपका AD जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस AD इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू भाई साहब क्या, BD स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन नारायण, जल्दी जल्दी। यहां पे देखो दिया क्या हुआ है कि ये वाला आपका ट्रायंगल में ये वाला राइट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले ट्रायंगल में ये वाला राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब आपका, ABD। इन ट्रायंगल ABD, एंगल ABD भाई साहब कितना होगा, 90 डिग्रीज, है कि नहीं। एंगल ADB, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी एंगल ADB। एंगल ADB दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 90 डिग्रीज, है कि नहीं। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। ओके, अभी हम कौन से ट्रायंगल में आएंगे भाई साहब, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC यहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है कि नहीं। ये राइट एंगल का ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये भी आपका क्या हो गया भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है भाई साहब, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर करना है। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठुस 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 भाई साहब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, अगर हमको यहां पे CD का स्क्वायर लिखना है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
सी डी का स्क्वायर, इसको इधर रखा तो ये इधर आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना भाई साहब। सी डी को इधर रखा, इसको पटक दिया इधर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, अगर हम ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, क्या हो जाएगा बोलो, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है बोलो, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियरम पीपलम। सो देयरफॉर ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी है, इससे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दोनों भी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई साहब यहाँ पे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने किया यहाँ पे बी डी का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी सी डी का स्क्वायर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, कोई कैस जल्दी से भाई साहब, जल्दी। ओके चलो भाई साहब इसको फटाफट क्विक। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखा हुआ है, ये इन ट्रायंगल होगा ये, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल, सो दिस विल बी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। सो पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच दैट डी लाइज ऑन क्यू आर। तो एक भी सवाल लिख भी नहीं रहा है, कर भी नहीं रहा है, तब से देख रहा हूं मैं, ठीक है। पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ए, पी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बी, और क्यू डी की वैल्यू कितनी है सी, और डी आर की वैल्यू कितनी है डी। आपको यहाँ पे प्रूव करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। चलिए फटाफट देखो बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। आप पहले ये वाला ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब आपका, पी क्यू डी, इन ट्रायंगल पी क्यू डी अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, है ना भाई साहब। पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, रीजन अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, पी क्यू का स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को इधर ले लो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा भाई साहब इक्वेशन नंबर 1। दिस इज बेसिकली योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है। इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, ये तो पी क्यू डी हो गया, इन ट्रायंगल पी आर डी, ठीक है, पी आर डी, इन ट्रायंगल पी आर डी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, है कि नहीं, पी डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर।
ये हो गया आपका इक्वेशन 2, अगे सॉरी इक्वेशन 2 नहीं होगा, दिस इज बेसिकली अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर, सो दैट विल बी बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या हो गया, पी डी का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू पी डी का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 और 2 आपके भाई साहब बराबर हो गए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बराबर हो गया ये, तो यहां पे लिख सकते हैं a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ये पी डी स्क्वायर के बराबर है, दिस विल बी इक्वल टू, देखो दोनों भी पी डी स्क्वायर है ना, ये भी पी डी स्क्वायर है, ये भी पी डी स्क्वायर है, तो a माइनस सी इंटू ए प्लस सी विल बी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी, बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी, ठीक है। a माइनस सी इंटू ए प्लस सी विल बी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, क्लियर है, दिस इज बेसिकली हेंस प्रूव्ड, क्लियर हम पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके, हाँ बी पे आ गया है भाई साहब, ओ हो, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, अपने को इसको इधर कर लेना है। चलिए इसको ना हम यहाँ पे पी डी स्क्वायर अगर लिखते हैं ना, तो पी डी स्क्वायर देखो क्या है, इसको अगर हम उड़ा दें, किसको भाई साहब, इसको तो लेट्स से वी रीड दिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ओके ओके ओके, इसको भाई साहब डिलीटवा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, वी कैन से दैट a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू पी डी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है, और यहाँ पे सी और डी, तो आप ट्रांसफर कर लीजिए, बी को अगर हमने इधर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी को अगर हमने इधर लिया तो वो प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी वही फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका हेंस प्रूफ, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है, ओके ओके ओके। इसके कल तीनों मॉड्यूल्स हो गए थे ना।